آپ یہاں پر قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ نواز صاحب کرپٹ نہیں ہے؟ نہیں وہ تو ہر پارٹی میرے بھائی یہاں پی ٹی آئی کے آپ ہیں, آپ ذرا آگے ہیں, آپ ذرا آگے ہیں. آپ یہ قسم اٹھائے کہہ سکتے ہیں آپ کا لیڈر کرپٹ نہیں ہے؟ جی میں قسم اٹھا سکتا ہوں. سر یہ کیا ہے, یہ دیکھیں. اب آپ نے مجھے ایک جواب دینا ہے. نواز شریف صاحب 15 سال تک ادار میں رہے, 3 بار حکومت سنبھالی, ان کے 3 کام گنوائے جس میں سیمنٹ سریا بجری استعمال لائی ہو. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 لوگوں کا سوال ہے, کوئی بھی جواب نہیں. سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. پہلے یہ سوال پھر آگے چلیں. نہیں یہ نہیں ہے. نہیں ہے جی, آپ کے پاس بھی نہیں ہے. نہیں ہے جی. بیٹا ووٹ کس کا ہے؟ عمران خان کا. عمران خان کا اس لیے کہ انہوں نے یہ سکھایا کہ روڈ اور سڑکیں ضروری نہیں ہے, تعلیم ضروری. انہوں نے ہماری تعلیم کا راستہ آسان بنا دیا, جو 75 ایئرز میں کسی نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ تعلیم سیکھو, تعلیم کرو گے, کچھ ایفرٹ کرو تو آگے بڑھ پاؤ گے نا. لرن بی فارورڈ, کہ ہر چیز آگے بڑھ کے سیکھو. مریم نواز شریف کی ویکنیس ہے. میں نواز شریف کو یہ کہوں گی ڈونٹ شو یور ویکنیس پلیز. I know you're idiot, but you don't show your idiot. کہ یہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ہے, تو مہنگائی کی ہر طرف یہ کہتا ہے بھائی جس نے ہماری چیزوں کو سستا کر دیا وہ ہمارے لیے پرفیکٹ لیڈر ہے. نہیں, جو ہمارے لیے کام کرتا ہے, جو ہماری قوم ہے, ہم آگے بڑھ سکے, بچے آگے بڑھ سکیں, تعلیم کرے اپنی, کچھ ہماری ترقی پا سکے ہمارا ملک. ہمیں عمران خان نے یہ سکھایا, نواز شریف نے ہمیں یہ صرف یہ سکھایا کہ مہنگائی کم کروں تو میں اچھا لیڈر ہوں. میں نے مہنگائی کم کی, میں اچھا لیڈر ہوں. میں نے پیٹرول کم کیا, میں اچھا لیڈر ہوں. میں نے گھی کم کیا, میں نے چینی کم کی تو میں اچھا لیڈر. نہیں, اس نے ہمیں تعلیم نہیں سکھائی. اس نے یہ نہیں بتایا کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے. مجھ سے آپ ووٹ کا نہ پوچھیں, مجھ سے میری جان کا پوچھیں کہ یہ کس کی ہے. اچھا یہ جان کس کی ہے؟ یہ خان کی ہے. جو خان نے لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہمیں بتا دی ہے, میں جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں, حالانکہ میں خود LLM میں نے کیا ہوا ہے, لیکن خان نے جو ہمیں شعور دیا, خان نے جو ہمارا خوف ختم کر دیا. جب آپ کو خوف ہی نہیں ہوگا تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے. السلام علیکم میرے بھائی, کیا حال چال ہے سر؟ ووٹ کس کا؟ ووٹ عمران خان. عمران خان کا؟ ہاں جی. کیا بات ہے بھائی, عمران خان کا کیوں؟ عمران خان کا ہی جی ووٹ, اور کس کو دینا؟ کیا وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے اس میں؟ وجہ عمران خان سچا آدمی ہے. عمران خان سچا اس لیے آپ؟ ہاں جی سچا آدمی ہے. 3.5 سال ان کی حکومت رہی, کیا کام کیا انہوں نے؟ کام آپ کے سامنے ہی ہے, آپ کے سامنے جو کام ہوا ہے سارے عمران خان نے کیے ہیں. سارے عمران خان نے. باہر سے آنے والے نے کیا کام کیا؟ باہر سے آنے والے کیا کام کیا؟ نواز شریف صاحب نے 3 سوال پوچھے عوام سے. آپ عوام میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں. نواز صاحب نے پوچھا ہے کہ عوام کی روٹی کس نے چھینی. نواز صاحب نے پوچھا ہے عوام پہ بوجھ کس نے ڈالا. عوام سے پوچھا ہے کہ جناب آپ کو قرضوں میں کس نے پہنچایا. یہ 3 سوال ہیں نواز صاحب سے. ان تینوں سوالوں کا جواب تو ایک ہی ہے نا, پچھلے 35 سال سے گورنمنٹ ان کی ہے, تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ سوال ان کا پوچھنا بنتا ہے. مجھے پہلے یہ بتائیں نا, یہ ان کا پوچھنا بنتا ہے ہم سے. آپ کن کو ان کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ ذمہ دار تو وہی ہے نا جو بھاگ کے باہر گئے ہیں اور اس کو بند کر کے اب واپس آ گئے ہیں. ان کو بند کر کے واپس. ہاں جی. ناظرین کرام, اور بات کرتے رہیں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اس طرف آئیں ذرا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر جی. ووٹ کس کا؟ ووٹ تو ہم لوگ کوشش کریں گے. کوشش ابھی پتہ نہیں ہے آپ کو؟ چلیں ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. السلام علیکم میرے بھائی, ووٹ کس کا میرے بھائی؟ پتہ نہیں یار, پتہ نہیں کیا, کیوں نہیں پتا؟ پتہ نہیں کیوں. پتہ نہیں ہے. آگے چلیں گے ناظرین کرام اور بات کرتے رہیں گے. سامنے بھی چلتے ہیں, کچھ ہمارے پختون بھائی بھی ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم خان صاحب, ووٹ کس کا ہے؟ ووٹ بھائی جان آپ ان سے بات کریں. کیا آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ یہ ووٹ تو حق ہے نا سر. دیکھیں یہ ہماری گواہی ہے, محشر کے دن ہم سے سوال ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ پکڑ کے دیں گے نا ہماری. ان لوگوں کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے. محشر کا ان لوگوں کو ہم نے گواہی ہے نا ہماری خان صاحب, گواہی. کس کو دیں ووٹ؟ اچھے بھی لوگ ہیں, راجو لک صاحب ہیں, سعد عزیز صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, کوئی بھی اچھا نہیں. انسان آئے گا پھر ہم ووٹ ڈالیں گے. السلام علیکم جی, ووٹ کس کا؟ وعلیکم السلام. جدھر دل کیا, جدھر دل کیا. یہ پیسے دیے اس کو نہیں دیں گے؟ پیسے لے کر ووٹ نہیں دینا چاہیے. یہ اچھی بات ہے, یہ ہاتھ میں لائیں, یہ بہترین چیز ہے. اور کیونکہ ووٹ آپ کی گواہی ہے میرے بھائی, ووٹ دیں گے کس کو؟ جدھر ضمیر مطمئن ہوا ادھر دے دیں گے. نواز شریف, زرداری, کن کو؟ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. میں آپ سے مخاطب ہوں, ووٹ کس کا سر؟ PTI کو. PTI کا؟ جی. کیوں بھائی PTI کا کیوں؟ وہ اچھے ہیں. وہ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ جی. پتہ ہے آپ دروگے والا میں موجود ہیں. ہاں جی. پھر بھی عمران خان. کیا بات ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ووٹ کس کا؟ شیر کا. شیر کا. دیکھیں آپ ملے پہلے شیر. شیر کون سا والا ہے, جو لندن بھاگ جاتا ہے, جو یا پھر مصیبت کے وقت کھڑا رہتا ہے, وہ والا شیر؟ دونوں میں سے کون سا شیر؟ بس جو بھی ہے بس شیر ہی پسند ہے. مطلب کون سا شیر, جو لندن بھاگ جاتا ہے وہ والا شیر, یا وہ شیر جو مصیبت کے وقت اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ جو مصیبت اپنی عوام کے ساتھ کھڑا وہ ہوتا تو ہے. عمران خان ہے بھائی. عمران خان ابھی کہاں ہے؟ عمران خان پابند سلاسل ہے, عوام کے ساتھ ہے. نہیں ابھی نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. کہاں پہ عمران خان؟ پتہ نہیں. لندن میں.
पता नहीं कहाँ पे है। आपको नहीं पता? नहीं, तो आप किस शेर की बात कर रहे हैं? ये जो इधर है इधर कौन सा है? अपना रेल, कौन सा है? हम तो इधर की बात कर रहे हैं ना। इधर कौन सा शेर है, नाम बताएं ना। नवाशी साहब है, ददारी साहब है, कौन है? ये इधर का जो अपना मैं है। खान साहब एक जुमला सिर्फ, वोट किसका? आगे इमरान खान का है। इमरान खान का, कोई दूसरा नहीं? नहीं, कोई नहीं है। कोई दूसरा नहीं, सिर्फ इमरान खान। थोड़ा सा पीछे चलते हैं जनाब, गाड़ी आ चुकी है। मोहतरम, वोट किसका? इमरान खान साहब का। इमरान खान का? जी, जी। आपका भी इमरान खान, क्यों भाई? जी, इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है, अवेयरनेस दिया है, ताकि लोगों को अंदर जो सा शऊर आया है, ताकि वोट इमरान खान को मिलना है। अब वो बिरयानी पे नहीं, अब इंशाल्लाह ताला वोट जो सा तालीम का होगा, और वोट सेहत कार्ड जो इमरान खान ने दिया था उसकी वजह से इमरान खान को वोट देगा। इमरान खान का होगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं मोहतरम, वोट किसका है अपना? पहले तो मैं एक बात आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं जरूर जरूर जरूर। कि मैं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के टिकट पे यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। माशाल्लाह, फिर आपसे पूछना नहीं बनता। तो मैंने कहा कि मुझसे आप वोट का ना पूछें, मुझसे मेरी जान का पूछे कि ये किसकी है। अच्छा, ये जान किसकी है? ये खान की है, ये इमरान खान की है। इमरान खान की ये मेरी जान है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो है आपका माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा सर्वे है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जो है ना आपका सर्वे चल रहा है जिस कॉन्सिक्वेंसी में। यहाँ पे हम जहाँ पे मौजूद हैं ये है 152 PP 152 है और NA 119 है, और इस पे इंशाल्लाह ताला खान जो है ना वो खान ही खान आपको हर घर से, जो 8 फरवरी का दिन है उसमें हर घर से खान निकलेगा। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आप देख लें, आप यहाँ से गुजर के आए हैं कि यहाँ पे कितने सालों से कितने इलेक्शन गुजर गए हैं। यहाँ पे एक मैं कहता हूँ लूटने वालों की हुकूमत थी, और उन्होंने किया क्या यहाँ पे आप देख लें एरिया का क्या है, यहाँ पे कौन सा काम हुआ है, ना कोई डेवलपमेंट है ना कुछ है। तो अब खान ने जो शऊर दे दिया है उस शऊर के मुताबिक जो है वो अब इंशाल्लाह ताला यहाँ पे लोग जो है वो बाहर निकलेंगे। जो खान ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो हमें बता दी है, मैं जो है ना वो समझता हूँ, हालांकि मैं खुद LLM मैंने किया हुआ है, लेकिन खान ने जो हमें शऊर दिया, खान ने जो हमारा खौफ ख़त्म कर दिया। जब आपको खौफ ही नहीं होगा तो आपको किस बात का डर है? तो आप देखें, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से जो है वो PTI बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये जो इलाका है इसमें डेवलपमेंट भी होगी। ठीक हो गया जी। एक मुस्तकबिल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटे आपका? एहसन। एहसन, वोट किसको दोगे बड़े होके? इमरान खान। और हक पे चलने का बताया, किस तरह ज़िंदगी जीते, गुलामी से आज़ाद किया हमें, सही है। और उन्होंने बताया कि ए इंसान तो किसी की गुलामी की यानी कि गुलामी की ज़िंदगी गुजारने से 4 दिन जीता है, आज़ादी की ज़िंदगी 1 दिन जी ले, ठीक है, वो 4 दिन से 1 दिन की अच्छी होगी। उन्होंने बताया कि हक पे चल, चाहे 1 दिन की ज़िंदगी जी, ठीक, और गुलामी की ज़िंदगी से 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है, सही है। गुलामी की जिंदगी से एक वो बहादुरी की जिंदगी बेहतर है। और 1 दिन बेहतर है, गुलामी के 4 दिन जीने से यानी कि आज़ादी का 1 दिन बेहतर है। आज़ादी का 1 दिन बेहतर है। मेरे भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं गुलामी और आज़ादी की, क्या अभी अब आज़ाद नहीं है? अब यानी कि जब तक उनकी हुकूमत थी हम आज़ाद थे। उन्होंने बताया क्या इंसान तो अपनी मर्ज़ी से जी, चाहे 1 दिन जे, मगर अपनी मर्ज़ी से जी। अगर किसी की यानी कि अपनी गुलामी करेगा वो 10 साल भी जिएगा ना तो वो किसी काम नहीं आएंगे, किसी काम नहीं आएगा। नाज़रीन सही। किराम, ये नजरिया इस वक्त अवाम में। अच्छा, कोई एक और भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, आप इधर आ जाए जनाब। आपका वोट किसको जनाब? भाई मेरा शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनया। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अच्छा, मैं इतने बंदों में से कहता हूँ कोई नून लीग का बंदा हो जो आगे आ जाए। कोई एक नून लीग का बंदा उठा के देख लें जी, कैमरा घुमाए जी। कोई नून लीग का बंदा आगे आना चाहे भाईजान। है ना, कम हुआ है, कम हुए हैं, कम महंगाई हुई है। कम महंगाई हुई अच्छा, है। अभी से पहली वाली हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की थी, ऐसी है? हाँ जी, हाँ जी। शहबाज साहब कौन है नवाज साहब के? हाँ जी भाई हैं, पहली वाली हुकूमत किसकी हुई? मुस्लिम लीग नून की। नून की। ठीक हो गया। अब जरा ईमानदारी से बताएं कि शहबाज शरीफ के दौर में ज्यादा महंगाई थी या इमरान खान के दौर में? इमरान खान के दौर में ही हुई। अब ईमानदारी से बताएं, इमरान खान के दौर में पेट्रोल का रेट कितना था? वो तो 150। हाँ, शहबाज शरीफ के दौर में 350 हुआ। से 350 हो तो गया। आपकी नज़र में सस्ता जो शहबाज शरीफ का पेट्रोल था, 350 का पेट्रोल सस्ता है, 150 का पेट्रोल महंगा है? नहीं, जब नवाज शरीफ गया था उस दफ़ा गया था। 16 महीने गिने ना,
ये नहीं बिकने, नहीं नहीं ये भी गिने ना। वही तो मैं गिन रहा हूँ। हाँ, किसके दौर में महंगाई हुई, शहबाज शरीफ के दौर में या इमरान खान के दौर में? ज्यादा महंगाई कब हुई? जब इमरान खान के दौर नहीं हुए ने। पेट्रोल का रेट तो ज्यादा था उनके दौर में। हाँ, दौर में हो गया ना वो, तो फिर किहड़ा आएगा वो रेट ਵਧੇਗਾ फिर घटेगा, यह तो ਹੁੰਦਾ ही रहता है। लेकिन ਕੰਮ तो ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। इमरान खान के दौर 'ਚ ਕੰਮ नहीं ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹੜੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ खर्चन लगे ना, ही सोचांगे 20 रुपया खर्चिए कि ना। आपकी बात सुनिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल, फिर मैं आवाम की तरफ, मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं, मैं उनकी तरफ भी चलूंगा, ठीक है? मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर कसम उठा के कह सकते हैं कि नवाज साहब करप्ट नहीं है? नहीं वो तो हर पार्टी मेरे भाई यहाँ पीटीआई के आप हैं, आप जरा आगे हैं, आप जरा आगे हैं, आप जरा आगे हैं। सर जी, आपका वोट किसको है? पीटीआई सर। पीटीआई को। आप ये कसम उठाए कह सकते हैं आपका लीडर करप्ट नहीं है? जी मैं कसम उठा सकता हूँ सर ये क्या है, ये देखिए उसकी आप गिनवा दें, इमरान खान की एक भी करप्शन आप गिनवा दें जो साबित हुई है, मैं आपसे जूतियां खाने को तैयार। नहीं जूतियाँ, ये बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की मैं इतनी करप्शन आपको गिनवा दूंगा कि आप माशाल्लाह बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। नहीं मेरे भाई हैं, वो मान रहे हैं, मान रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। करप्ट है, चोर है, फिर भी वोट उसका। हाँ जी, वो तो फिर ये क्लैपिंग होनी चाहिए, जरा क्लैपिंग करें। मैं सर ये सलूट है, हाथ मिलाएं। पार्टी तो पार्टी है ना, वो तो ठीक है, कड़ी पार्टी होती है खाती है। क्या बात है, क्या बात है, आपका नजरिया ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप आ जाएं जी, आप आ जाएं। हमारे जो मुल्क के इस वक्त हालात इतने बुरे हैं ना, ये हमारे कुछ माशाल्लाह समझदार बुजुर्गों की वजह से ही हैं, जो करप्ट को भी करप्ट नहीं कहते, जो महंगाई को सस्ता कहते हैं और सस्ते को महंगाई कहते हैं, और कभी इस बात को तस्लीम कर ही नहीं पा रहे कि यार हमें तब्दीली चाहिए, हमें निज़ाम की चेंजिंग चाहिए, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, और हमें ऐसे लोग चाहिए अपने ऊपर कि जो आवाम का सोच सकते हो, हमारे बच्चों का सोच सकते हो, हमारी तालीम के बारे में सोच सकते ठीक हो। हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बीच में बोल रहे थे, आपका वोट किसको है जनाब? पहले आप ये हमारा बताएं। नून लीग को ही है। आपका नून लीग को है, ठीक है। आपसे भी सेम सवाल करूंगा जो मैं सबसे कर रहा हूँ, आपने तैयार हो जाना है, ठीक है? बल्कि आप 2 सवाल तैयार हो गए होंगे, ठीक है? मुझे ये बताइएगा कि आपके लीडर ने 3 बार हुकूमत संभाली, 15 साल इक़्तिदार में रहा, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई? बात यूनिवर्सिटी की करें ना, आवाम को क्या, आवाम को यूनिवर्सिटियां जरूरी नहीं है भाई, मेरी बात जो तालीम जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, नाम बताएं, फिर मैं आगे बात करता हूँ, आगे बात करूंगा, आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन पहले बताएं क्या उन्होंने बनाई? चलो नहीं बनाई। ठीक हो गया जी। आप पीटीआई का यहाँ पर कोई हो, आप ही बताएं सर, आप पीटीआई के हैं? कोई पीटीआई का? मेरी भाई आप पीटीआई के हैं, आप मुझे बताएं, आप पीटीआई के जनाब? जी सर। इमरान खान साहब की इक़्तिदार में या इमरान खान साहब ने कोई 2 यूनिवर्सिटियां बनाई हो, उनका नाम बताएं। जी उन्होंने 2 यूनिवर्सिटियां बनाई, उन्होंने लम्ज़ यूनिवर्सिटी बनाई, नमल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ठीक है, अब्दुल यादव कादर यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई। उसके अलावा उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल जो पहले शौकत खानम था उनके हुकूमत से आने से पहले, उसके अलावा भी उन्होंने एक और कैंसर हॉस्पिटल बनाया और उसका इफ्तिताह भी हो चुका है, ठीक है सर, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो सेहत कार्ड दिया, आज तक ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, उनका सेहत कार्ड पे 10 लाख रुपए तक मेरे और आपके जैसा बंदा भी इलाज करवा सकता था, जो नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा आने के बाद, शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद उस पर पाबंदी लग गई, ठीक है, और उसके बाद इलाज का जो है ना वो मामला एकदम से ठप हो गए, ठीक है। अब जो बंदा एक 500 रुपये या 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, वो 2-4 लाख रुपए का इलाज नहीं करवा सकता प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें एक मजदूर बंदा भी वो एक कार्ड, एक शनाख्ती कार्ड ही लेकर हॉस्पिटल में जाता था, उसका 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज हो रहा था, फ्री इलाज होता था। नाज़रीन किराम, अच्छा इन्होंने 2 यूनिवर्सिटी के नाम ले लिए, ठीक है, ठीक है। अब मुझे आप जो बात करना चाह रहे हैं आप पूरी बात करें। ये आपने हमारे, ठीक है, ये मनावा हॉस्पिटल किसने बनाया? ये हमारे पास ही जो है, ठीक है, किसने बनाया? इमरान खान ने बनाया, तो अब ठीक है, वो साहब ने बनाया। मेरी बात सुनो, सेहत कार्ड का क्या करना है? 10 बंदों के पास होगा, 50 तो खाली हैं। ठीक हो गया। अब मुझे इधर से कोई भी बता दे, थोड़ी सी ना, देखिए आप मेरे प्यारे भाई हैं, मेरे प्यारे भाई हैं, लेकिन थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। सेहत कार्ड कोई कार्ड नहीं है, आपका शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड था, ठीक है। शनाख्ती कार्ड जिस बंदे के पास है सेहत कार्ड है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दुरुस्त हुई, ठीक हो गया। अब आगे बात करें। तो अब बात करें ना, आप कह रहे हो ना जो महंगाई के एक बंदे की 1000 रुपया दे रही है, ठीक है, वो 1000 रुपये में आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा? चलेगा, बहुत मुश्किल है। हाँ जी, कैसे, कब हुआ था पहले मुझे ये बता दें।
साहब से पूछे ना जनाब के 1000 रुपए से, शहबाज शरीफ साहब से पूछें कि एक मजदूर 1000 रुपए में कैसे ये सरवाइव करेगा, ठीक है। ये इसमें इमरान खान की क्या गलती है? 3.5 साल उसने हुकूमत की है और उसको 3.5 साल में उसने जो जो काम किए हैं पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख ले, कोई आज तक कर नहीं पाया, ठीक है। और 3.5 साल में आपने उसको और काम करने ही नहीं दिया, ठीक है। तमाम महकमे, तमाम जो जितने भी मामला थे उसके आपने उसके पीछे लगा दिए और उसको आपने जेल में डाल दिया, ठीक है, ठीक है। और अच्छा चले, मैं इनका जवाब देंगे आप। ठीक है, ये लॉकडाउन हुआ है, ठीक है। जब लॉकडाउन में इसने मुंह से कह दिया तो मैंने इमदाद बहुत इकट्ठी किया, सबसे आया सारा, किधर गया वो पैसा, ठीक है। कर्जा इमरान खान ने भी लिया, किधर गया? नवाज शरीफ ने भी लिया, किधर गया? कर्जा किसने लिया? ठीक है, ज्यादा कर्जा किसने लिया? ज्यादा कर्जा इमरान खान के दौर में हुआ है। इमरान खान साहब ने कितना कर्जा लिया बताएं? नहीं, आपको नहीं पता? मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे मेरी बात सुने, सब्र करो। पहले बताता हूँ चले मैं बता देता हूँ। एक मिनट चले, मैं आपने मुझसे पूछा कि मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली 2013 में, उनकी हुकूमत की 2017 में, जी 40 अरब कर्जा लिया, जी ठीक है। इमरान खान ने हुकूमत संभाली 2018 में, अच्छा 2020 10 अप्रैल को हुकूमत गवा दी, जी उन्होंने कर्जा लिया 27 अरब, अच्छा। अब मुझे बताएं ज्यादा कर्जा कितना अरब किधर गया? उस पहले मुझे ये बताएं ज्यादा कर्जा क्या? सब 40 अरब किधर गया? किधर गया? वो तो यार रोड बने, सड़कें बनी, उस 27 अरब में आप ये चेक करें कि IMF को कितनी किस्तें दी उसने। एक मिनट, नहीं मेरी बात 2 महीने बाद आता था। अच्छा एक मिनट, मेरी बात सुने, एक मिनट, इनको बात करना, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने सवाल किया, इनको जवाब देना है, ऐसी बात नहीं आप लड़ने लग जाएं। आपने सवाल किया 27 अरब कहां पे यूज हुआ, ये मैं जवाब देता हूं, लेकिन पहले आप ये माने कि नवाज साहब ने ज्यादा कर्जा लिया। 40 और 27 कौन सा नंबर? जरदारी के दौर में भी कर्जा आया ना, सिर्फ उसके दौर में के बंदे 40 और 27 में ज्यादा नंबर किसका है? चलो कर्जा उसने लेते हैं, 40 से ज्यादा चले बंदे ने मान लिया। अब आपका दूसरा सवाल आ गया, 27 अरब में क्या किया उसने? हाँ जी बताएं। आप ईमानदारी से ना सुनते रहे, थोड़ा करीब आ जाए मेरे। 27 अरब में उस बंदे ने लंगर खाने खोले, 27 अरब में उस बंदे ने पनाहगाहें खोली, 27 अरब में उसने सेहत कार्ड खोला, 27 अरब में उस बंदे ने सेहत प्रोग्राम खोला, 27 अरब में उसने सास प्रोग्राम खोले, 27 अरब में उसने पाकिस्तान में बच्चों में यह बताया कि जनाब आपका लीडर कोई डोनाल्ड नून नहीं है, उसने बताया कि आपका कोई लीडर बिल गेट नहीं है, अगर है तो वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन। ये तो पर्चियां सुनाते हैं, क्या हो गया? पर्चियां पढ़ने का क्या फायदा, अब वोट देना ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं अंकल। वोट किसका? शेर का। इधर है अंकल। कौन से वाले शेर का? जो लंदन भाग जाता है वो वाला शेर, और वो वाला, बात तो सुन लें, या फिर वो वाला शेर जो हमेशा आवाम के साथ रहता है, वो वाला से भाग गई है, इमरान की वजह से सारा कीता कराया, इमरान की वजह से भागा था। वही करके गया काम। सुन तो लें, बात तो सुन लें, सवाल तो सुन लें। सवाल आप सुन नहीं रहे, भाग रहे हैं। नहीं भागना नहीं है, भागना नहीं है, बर्गर लगाना नहीं तो आए ना आप इंद्राज ना ये महंगाई या इमरान खान की वजह से हुई है। बात तो हाँ जी ऐसे ही बात है। अच्छा मुझे बताएं कौन सा वाला शेर? आने से नहीं बात। मियां साहब, नवाज शरीफ भागना नहीं है, अभी काम है मेरे पास ना, अभी काम है मेरे पास। सॉरी बस दे दिया हमने काम करना। वो नारा लगा के भाग गए। आगे चलेंगे जी, आगे आवाम की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन से वाले शेर के साथ हैं आप? जी मैं PTI के साथ, इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथ हैं? बिल्कुल इमरान आप खान। भी उस वाले शेर के साथ हैं जो हमेशा मुश्किल वक्त में आवाम के साथ रहता है? इमरान खान, हम जी इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथ है। क्या वजह है इमरान खान के साथ? इमरान खान सच्चा बंदा है और जो उसने अपने दौर में काम किए, अच्छे काम किए। अच्छे काम किए इसलिए आप उनको वोट देंगे? वो एक सच्चा बंदा है इसलिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसका जनाब? वालेकुम सलाम। हमारा जो अच्छा बंदा होएगा उसी को ही वोट। कौन है अच्छा बंदा? इमरान खान ही है। इमरान खान ही है, आप उसको ही वोट देंगे? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, वोट बन गया तो किसको वोट देंगे? इमरान खान को भाईजान। इमरान खान को देंगे? जी भाईजान। क्या वजह है इमरान खान को वोट क्यों देंगे? क्योंकि वो एक अच्छा बंदा भाईजान। अच्छा बंदा है? जी भाई। क्या काम किए हैं उसने? उसने भाई बहुत अच्छे काम किए हैं। उसने एक वो पुल बनाया है, उसके बाद उसने वो क्या कहना है कि डैम बनाया यार, डैम बनाया सेहत कार्ड की इस वजह से। जी ठीक हो गया। कौन किसका वोट दोगे? इमरान खान को। आगे चलेंगे जी।
ਸਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ बहुत जगह शनाख्ती कार्ड बन गया, फिर किसको देंगे? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ इमरान खान को देंगे। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ठीक हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं? कैसे आप कैसे हैं? शुक्र है आप ठीक है? पार्टी केड़ी ਤੁਹਾਡੇ आपको एक मिनट, अच्छा मुझे बताएं कि आपको किस पार्टी से लग रहा है? इमरान खान से अच्छा मुझे बताएं कि मैंने अभी तक कितने झूठ बोले हैं जिसकी वजह से मैं आपको इमरान खान का लग रहा हूँ? आपने कोई झूठ नहीं बोला है अगर आप सुने, अगर मैं सच बोलने की वजह से आपको इमरान खान का लग रहा हूँ ना, तो ये मेरी नहीं सर, ये फिर आपकी गलती है। आप इमरान खान पार्टी के यार भाई मैं तो सच बोलूंगा, ऐसे ही सच बोलना चाहिए आपको। अही भाई इमरान खान हाल दे यार आप इमरान खान के हाँ साथ हैं। हाँ जी जो सच बोलता है बंदा वो इमरान खान का बन जाता हाँ जी मैं इमरान खान दे नाल दा ऐसी है? हाँ जी है। तो क्या बताएंगे आप? सर जी मैं इमरान खान नाल हकीकत में इमरान खान दे नाल दा है। मेरा नसीर जट यार है अच्छा हाँ जी नगोटिया क्या बताएं इमरान खान को वोट देने की वजह क्या है? वजह वो अच्छा इंसान है यार अच्छा इंसान, हाँ बिल्कुल इसलिए आप उसको वोट देंगे। हाँ मैं उसको बोल दूंगा यार हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका लेते हैं? इमरान खान को दे इमरान खान को। क्या वजह है वोट इमरान खान को क्यों? वो अच्छा आदमी, उसने अच्छा हुकूमत गुजारा है इधर बकाया जोन सब है वो सब चोराया है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं? ठीक है। वोट किसका जनाब? ਵੋਟ ਕਿੰਦਾ ਵੋਟ ਤਾਂ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ गंजिया दा ही है? हमें हवादार होके बोल रहे हो गंजिया दा ही है? गंजिया दा। मजबूरी है देना? ਇਹ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ ये मजबूरी है? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂਜੀ तो मुझे अच्छा मैं आपसे बात करते इधर आ जाए, आप भी शेर को ही वोट देंगे? इंशाल्लाह आप दोनों शेर के वोटर शेर के हैं। आप भी शेर के वोटर हैं, आप भी इधर आए, आप भी इधर आ जाएं, आप भी इधर आ जाएं, आप भी इधर आ जाएं, आ जाएं आने दें, आने। आप सारे शेर के हैं, आने दें। आप भी शेर के वोटर हैं? नहीं रुके अभी आप, अच्छा एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा आप मुझे एक मिनट सबर करें। अब आपने मुझे एक जवाब देना है। नवाज शरीफ साहब 15 साल तक इदार में रहे, 3 बार हुकूमत संभाली, उनके 3 काम गिनवाएं जिसमें सीमेंट सरिया बजरी इस्तेमाल नहीं हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का सवाल है, कोई भी जवाब नहीं। ਛੱਡੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਆ भाई जी एक अच्छा ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है? नहीं है इमरान खान कह रहा था नवा पाकिस्तान बनेगा इमरान खान ये नवा पाकिस्तान मुझे एक बात बताएं, ये ज़हनों पे इमरान खान क्यों सवार हो गया? अच्छा ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। पहले ये सवाल फिर आगे चलते हैं। ਨਹੀਂ ਇਹ नहीं है नहीं है जी, आपके पास भी नहीं है? नहीं है जी क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम बेटा सलाम। वोट किसका है? इमरान खान का। इमरान खान का? जी इमरान खान का क्यों? इमरान खान का इसलिए है कि उन्होंने ये सिखाया कि रोड और सड़कें ज़रूरी नहीं है, तलीम ज़रूर। और उन्होंने हमें ये भी उन्होंने हमें एक बुक्स लगाई है तर्जुमा अल कुरान, जो 75 ईयर्स में हमने आज तक नहीं देखा, जो किसी भी हमारे जो लीडर हैं किसी ने भी नहीं लगाई, जो सेकंड ईयर तक ये जा रही है। हम जब भी बच्चे 1 से लेकर सेकंड ईयर तक इसको पढ़ते हैं तो उनका सवाब उनको ही जाता है। इसलिए मुझे वो लीडर बहुत पसंद है। उसमें क्या है ऐसा बेटे? उस वक्त में ये है कि जो हमने देखा नहीं है, जो हमने देखा नहीं है वो बताते हैं और हम उससे सीखते हैं। जो हमें बातें नहीं मालूम हम वो भी उससे सीखते हैं। किस बात की बातें आप बेटा बताइए? ये जिस तरह के हम औरतों के बारे में एक सूरत है, वो सूरत हम उसमें पढ़ते हैं तो हमें वो पता चली है कि वो सूरत क्या और उसमें हमारे हकूक क्या हैं। को लाजमी की है, हाँ ये जी। बता रही हैं आप, क्या बात जी। है? और क्या वजह है बेटा? इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की, क्या काम किए उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने हमारे तलीमी अदारे खोले, बाज़ औक़ात हमारे तलीमी अदारे खोले, उन्होंने हमारी तलीम का रास्ता आसान बना दिया, जो 75 ईयर्स में किसी ने हमारे लिए ये नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि तलीम सीखो, तलीम करोगे, कुछ एफर्ट करो तो आगे बढ़ पाओगे ना, लर्न बी फॉरवर्ड, कि हर चीज़ आगे बढ़ के सीखो। ठीक हो गया बेटा। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन पाएंगे? जी ज़रूर, इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेंगे। और आपको नहीं लगता मरियम नवाज अच्छी है और नवाज शरीफ अच्छे हैं? मरियम नवाज नवाज शरीफ की वीकनेस है। मैं नवाज शरीफ को ये कहूँगी, डोंट शो योर वीकनेस प्लीज़। आई नो यू आर इडियट अच्छा, बट यू डोंट शो योर इडियट। क्या बात है बेटे। मुझे ना, मैं आपसे 2-3 सवाल करूंगा, ये लास्ट सवाल है। मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने 3 सवाल किए हैं आवाम से, आप कौम की मुस्तकबिल है, मुझे बताइएगा। नवाज साहब कहते हैं कि आप बताएं कि मुल्क को मकरूज किसने किया, वो कहते हैं कि आप बताएं कि मुल्क में कर्जा किसने चढ़ाया, वो कहते हैं आवाम को बेहाल किसने किया। ये 3 सवाल हैं उनके आवाम से, आपका क्या जवाब है?
ملک کو قرضہ تو نواز شریف نے چڑھایا اور ملک کو انہوں نے عوام کو بحال انہوں نے کیا، کیونکہ یہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ہے تو مہنگائی کی ہر طرف یہ کہتا ہے بھئی جس نے ہماری چیزوں کو سستا کر دیا وہ ہمارے لیے پرفیکٹ لیڈر ہے. نہیں، جو ہمارے لیے کام کرتا ہے، جو ہماری قوم ہے ہم آگے بڑھ سکے، بچے آگے بڑھ سکیں، تعلیم کرے، اپنی کچھ ہماری ترقی پا سکے ہمارا ملک. ہمیں عمران خان نے یہ سکھایا، نواز شریف نے ہمیں یہ صرف یہ سکھایا کہ مہنگائی کم کروں تو میں اچھا لیڈر ہوں. میں نے مہنگائی کم کی، میں اچھا لیڈر ہوں. میں نے پیٹرول کم کیا، میں اچھا لیڈر ہوں. میں نے گھی کم کیا، میں نے چینی کم کی تو میں اچھا لیڈر. نہیں، اس نے ہمیں تعلیم نہیں سکھائی. اس نے یہ نہیں بتایا کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے. اس کے لیے میرا ایک شعر ہے: دل کے پھیپھڑے جل گئے سینے کے داغ سے، دل کے پھیپھڑے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کیا بات ہے. اور عمران خان کے لیے کیا شعر ہے؟ عمران خان کے لیے شعر ہے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے: ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. بیٹا بہت شکریہ. دروگی والا میں اس وقت آیا تھا عوام سے رائے جاننے کے لیے. سب سے میں نے بات کی، لاسٹ میں یہ بچی نے محفل لوٹ لی. اور یہی نظریہ ہے جو عمران خان بتاتا ہے کہ جناب ایک نظریہ، ایک کانسیپٹ، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان زندہ باد.